क्या कभी आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे पीरियड्स आए हैं या फिर पीरियड्स की वजह से आपके ट्रैवलिंग प्लान्स कैंसिल हो गए, बट आपको ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद है और आप किसी भी हाल में ट्रैवलिंग मिस नहीं करना चाहते हैं? अगर इन सब का आंसर यस है तो आप बहुत सही जगह पे आए हो बॉस। So hi everybody, welcome to the channel once again. I'm Shivani and a travel vlogger, and in today's video I'm gonna dive into the topic of how can you travel during your periods. Now obviously I'm a girl and also a traveler, so I think I would be the best person to talk about on this topic. And I also know that the audience on my YouTube channel and Instagram is mostly male dominated and they might think that this video is of no use for them. But hang on, you got a family guys, you got a friends, girlfriends, mother, sister or wife, so you can share this video with them because this could be really helpful for them too. So share this video with your loved ones, spread the love and awareness. So without any further delay, let's get into the video and start right away. Okay, so the point number one that you need to keep in your mind is always carry your feminine hygiene products. Now that sounds quite obvious because when you get your periods, obviously you're going to carry lots of pads, but avoid using pads because number one, they can make you uncomfortable, two, they are not so hygienic also, three, they smell horrible, and four, they can give you rashes on your inner thighs also. So avoid using these pads. So instead of pads, you can either use these tampons or menstrual cups. Personally, I have never tried menstrual cups till date, so I can't comment on that. I'll try them one day and share my experience with you definitely. But till date, I have been using these tampons and they have saved my life multiple times from the disaster, especially when I have to have a beach day or I have to enjoy inside the swimming pool because I'm a water baby, so I totally rely on them. So you can also use these tampons or menstrual cups, but you can't use these tampons during the last days of your periods because of the less flow and less lubrication. So what to do? So that time you can use these panty liners because they are really smaller in size as compared to the pads, so they cannot make you uncomfortable. Also, they are really easy to use and you are good to go with them during your last days of your periods. So the next point is, no matter if you're on periods or not, always carry these hot water bags with you. Now this one is bigger one. I don't really remember where I have kept the smaller one, but actually the smaller ones are easy to carry while traveling, so you can buy a small hot water bag for you and carry them while traveling. They're gonna save your life multiple times. You get sometimes you get body pains after traveling, hiking or trekking, so they can give you relief from the body pains. और पीरियड्स के टाइम पे तो वैसे ही कुछ गर्ल्स को काफ़ी क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो क्रैम्प्स के टाइम पे अगर आप हॉट वाटर बैग यूज़ करते हो तो लिटरली बहुत रिलीफ मिलता है. सो ऑलवेज कीप दीज हॉट वाटर बैग्स विद यू while traveling. Moving to the next point, always do a little bit of workout or yoga during your periods, or if not workout then at least go for a little bit of walk. Now the workout is really important during your periods because you have to be physically active. The workout isn't important during your periods only, they are important in everyday's life also. Because if you have more fatigue in your body, you will get more cramps and vice versa. So be active. Periods के टाइम पे आप ज़्यादा heavy workout तो नहीं कर सकते हैं, so do little bit of workout, light workout करें ताकि आपकी body में fatigue भी कम हो और आपको cramps भी कम से कम पड़े. Now let me tell you here one thing. During my last trip to Jammu, when I was trekking all the way to Vaishno Devi, I got my periods. It was the first day of my periods and the trek was about 14 kilometers, but I trekked all the way to Vaishno Devi and I made it. ट्रैकिंग के टाइम पे मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हुई, मुझे ज़रा भी क्रैम्प्स नहीं पड़े बिकॉज एक तो मेरा ध्यान भी उस तरफ नहीं गया एंड सेकेंडली आई वॉज फिजिकली एक्टिव ऑल्सो. हाँ, रात के टाइम पे मुझे ज़रूर माता रानी याद आ गई, बट उस टाइम पे मैंने हॉट वाटर बैग कैरी किया हुआ था तो इसलिए मैंने वो यूज़ किया जिसकी वजह से मुझे जल्दी पेन से रिलीफ भी मिल गया. सो ऑलवेज कैरी हॉट वाटर बैग ऑल्सो एंड बी फिजिकली एक्टिव ऑल्सो ड्यूरिंग योर पीरियड. सो अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो काफ़ी सारी गर्ल्स पीरियड्स के टाइम पे पेन किलर्स खाती हैं. अगर आप उनमें से एक हो तो पेन किलर्स खाना छोड़ दें बिकॉज एक तो उनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड सेकेंड आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है एंड इट लूजेस द टेंडेंसी टू बेयर द पेन. सो अवॉइड हैविंग द पेन किलर्स.
आपको पेन किलर्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। टू बी फ्रैंक, मैंने आज तक कोई भी पेन किलर नहीं खाया है। आई गिव माई बॉडी टाइम टू हील इटसेल्फ, और मेरी बॉडी खुद से हील करती है बिकॉज आई हेट मेडिसिन। मैं मेडिसिन बहुत ही कम खाती हूँ, ना के बराबर खाती हूँ। मुझे अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो जाए मैं बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं खाती हूँ। तो पेन किलर्स तो बहुत दूर की बात है, मैं पेन किलर्स को छूती तक भी नहीं हूँ। मैंने कभी भी आज तक पीरियड्स के टाइम पे पेन किलर्स नहीं खाए हैं, और टचवुड मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी है इसीलिए। तो अगर आप पेन किलर्स खाते हो तो आज ही पेन किलर्स खाना छोड़ दें। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट और बहुत ही कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। सो अवॉइड हैविंग समथिंग विच इज़ ठंडा इन तासीर, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड वाटर, आइसक्रीम और राइस। इंस्टेड हैव समथिंग विच इज़ गर्म इन तासीर, जैसे कि हॉट कॉफ़ी, हॉट वाटर और चाय। ठंडा खाने की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो रुक जाता है, और ब्लड फ्लो रुकने की वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं। फिर अगर आप ठंडा खाने की बजाय अगर आप गरम चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या फिर गर्म पानी का सेक देते हैं तो उससे आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है, और ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से आपको क्रैम्प्स भी नहीं पड़ते हैं। बस थोड़ा सा कमर में पेन होता है, बट वो तो होता ही है यार, बट एटलीस्ट आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे अगर आप गर्म चीज़ें खाएंगे। सो आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी है ड्यूरिंग योर पीरियड्स। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट एंड ऑल्सो अ प्रो पॉइंट, और ऑलमोस्ट हर लड़की को इसके बारे में पता होता है और हर लड़की इस काम को ज़रूर करती है। एनी गेस? ऑलवेज कीप अ चॉकलेट और अ डार्क चॉकलेट विद यू वाइल ट्रैवलिंग अगर आप पीरियड्स में हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स गेट दिस मूड स्विंग्स इश्यूज ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। ज़रूरी नहीं है कि आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो ही हो, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है, और डार्क चॉकलेट्स खाने से या फिर चॉकलेट खाने से आपके मूड स्विंग्स काफ़ी कंट्रोल होते हैं, स्पेशली डार्क चॉकलेट खाने से। सो गर्ल्स का तो मुझे पता नहीं, बट गाइज आप लोगों की लाइफ ज़रूर बच जाएगी अगर आपने डार्क चॉकलेट या फिर चॉकलेट अपने बैग में रखे हैं, कैरी किया है अपने गर्लफ्रेंड्स के लिए अगर वो पीरियड्स में है और आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो। So these are the points that you need to keep in your mind while traveling if you're on periods, and if you follow all of them then nothing can stop you from traveling. So अगर आपको वीडियो पसंद आई है then give it a thumbs up, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर ज़्यादा पसंद आई है तो आप मेरा पीछा कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे हैंडल का नाम है शिवानी द एक्सप्लोरर विच इज़ अ न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं वहाँ पर ट्रैवल कंटेंट अपना पोस्ट करने वाली हूँ, जैसे कि ट्रैवल फोटोज़, वीडियोज़ एंड IGTV वीडियोज़। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द हैंडल नेम इज़ शिवानी द एक्सप्लोरर। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।